everyone. So, welcome to today's episode. And today we have with us Mr. Akash Bhabar. He's a member from our own community for Solopreneur Circle. And he has recently did some achievements in his business. And we are going to talk about what was his success ladder that he has climbed and how he has achieved that milestone for his business. So, he has recently achieved a milestone of getting six-figure income from a single client. And that is something that we are going to discuss today, that how you can achieve a six-figure income from a single client, how you can scale it, and what should be your next plan in the future. So Akash is a premium member for the Solopreneur Circle community. Welcome, Akash, to today's talk. Thank you, ma'am. Okay, Akash. So tell me, what was the recent achievement in your business? अभी आपके business में recent achievement क्या रहा? Yes, so first of all, thank you. Thank you for इनवाइटिंग और रिसेंट अचीवमेंट जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में भी शेयर किया था, सक्सेसफुली हम लोगों ने अचीव किया है एक प्रीमियम क्लाइंट को क्लोज करके कि एक सिक्स फिगर वाला जो क्लाइंट था, हमारा एक टारगेट था, गोल था कि हम लोगों के पास भी सिक्स फिगर वाला क्लाइंट होना चाहिए और सक्सेसफुली हम लोगों ने वो अचीव किया है. Wow, that's amazing, Akash. So Akash, before we move ahead, tell me something about your business. अभी जिस business पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे आपको एक milestone अचीव हुआ है, एक नया step अचीव हुआ है, so what is that business about? It's a book publication actually. बुक पब्लिकेशन एक बिजनेस है जिसमें हम राइटिंग से लेके पब्लिशिंग, ब्रांडिंग तक पूरा सपोर्ट करते हैं. बुक राइटिंग अगर किसी को करना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ बुक लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है. बुक लिखने के बाद हमेशा वो जर्नी वहां से शुरू होती है. इम्पोर्टेंट वो है कि हम अपने बुक को कैसे अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए या बिजनेस को आगे लेके जाने में हेल्प करे. तो उसमें हम ज्यादातर फोकस करने की कोशिश करते हैं. और बुक राइटिंग में अगर किसी को लिखना है तो क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है, तो क्या लिखे, कैसे लिखना है, वहां से लेके बुक पब्लिश कैसे करते हैं, क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं. फिर बुक पब्लिश होने के बाद भी हम उसको कैसे मार्केट करें, स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज करें, अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कैसे यूज करें, उसमें हम लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं. और फिर ब्रांडिंग एक इम्पोर्टेंट चीज है. तो ये सब चीजें ABCD के यहाँ पे या बाबर इंटरनेशनल पब्लिकेशन के थ्रू हम लोग सपोर्ट करते हैं. मोस्टली ट्रेनर्स, कोचेस, एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेटर्स, उनके लिए हम लोग करते हैं. पर फिक्शन, नॉन फिक्शन, टेक्स्ट बुक भी हम अभी शुरुआत किए हैं. तो वी प्रोवाइड ऑल द थिंग्स. Wow, that's great. In short, Akash has a book publication business. Akash का एक book publication का business है where he does fiction, non-fiction books, etc. And most of his customer category is with trainers, coaches, entrepreneurs, and educators, because these are the people who are very who love to write book, I would say, and who grow their business or who grow their identity or create a separate identity for themselves through books. So Akash has been helping such kind of people to create a separate identity. Not only the focus is on good quality publication, but also the focus is on how you can lead that person from one part to the another of the journey. That is how you can actually help the person establish a brand for self. तो उस चीज में आकाश बिल्कुल हेल्प करता है. एंड so Akash, like when we were cracking this premium client, जब हम लोग premium clients की बात करने के लिए बैठे थे and we were having a planning session, that time what was the first step that we took to help you plan how to grab that premium client for your publication business? बेसिकली जैसे मुझे याद है हम लोगों ने ये साथ में प्लान किया था. मुझे सबसे पहले ये था कि हम लोगों ने शुरुआत जो की थी ना, 5,000 रुपीज से शुरुआत की थी हम, सबसे पहले. और फिर हम लोगों ने कुछ अपग्रेडेशन किए, कुछ और सर्विसेज ऐड की. तो हम लोगों को लगा कि हाँ, थोड़ा एडिशन होना चाहिए. और लास्ट नवंबर में जब हमारा उदयपुर में एक इवेंट था, और वो टाइम पे मैंने सोचा था कि 1 लाख वाला क्लाइंट हमारे पास होना चाहिए. तो
और वो चीज मैंने आपको शेयर की थी कि हाँ हमारे पास भी ऐसा क्लाइंट होना चाहिए जो प्रीमियम क्लाइंट होना चाहिए। तो फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए, क्योंकि पब्लिकेशन में एक जैसा ही क्लाइंट नहीं आता है। यहाँ पे क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको बुक पब्लिश करना है। तो हमारे पास 14 ईयर्स का स्टूडेंट है, वो बेस्ट सेलर ऑथर है। तो 14 ईयर का स्टूडेंट्स है, उनके लिए तो हमें कुछ ऐसे ही सर्विसेज ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पे उनको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस भी मिले और उनको कुछ अच्छी सर्विसेज मिले। फिर एजुकेटर्स आते हैं, उनको कुछ प्रोफेशनल काम होता है, जैसे उनको कुछ पॉइंट्स वो बुक लिखते हैं। तो फिर उनके लिए मैटर ये नहीं होता कि हमें बहुत सारी ब्रांडिंग चाहिए, उनको खाली बुक पब्लिश करना होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम ट्रेनर्स कोचेस होते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ बुक लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बुक लिख के हम कैसे उसको यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सेम। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। क्योंकि एक ही चीज के लिए हम अगर बैठेंगे, एक ही बिजनेस है पर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, तो सबसे पहले समझ में मुझे ये आया आपसे बात करके कि चलो हमारे ऑडियंस को हमें समझना चाहिए कि हमारे पास हमारे कस्टमर कौन है, प्रोस्पेक्ट कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन मिलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे एकदम प्रीमियम कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जिनको हमें कुछ ऐसे प्रीमियम सोल्यूशन, कस्टमाइज सोल्यूशन करके भी देना चाहिए। तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट डिफरेंट 5 पैकेजेस हम लोगों ने बनाए। उसके अकॉर्डिंग जो प्लान आउट हुआ कि फिर, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही कि हाँ उसके लिए बैक एंड में क्या क्या करना है। तो एक प्रॉपर ब्रोशर बनाना है, या वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज है, जो एग्रीमेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करके बनाए थे, वो सब चीजें बहुत हेल्पफुल रहे कि एकदम इजी होता है कि कोई भी चीज करने के लिए। और कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा कि जो शायद आपने भी बताई और भी मेरे मेंटर्स से कि सबसे पहले ना हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोगों ने गोल ऑलरेडी लिया था कि हाँ चलो 1 लाख वाला क्लाइंट चाहिए। और उसके लिए एक और चीज मैं थोड़ा फनी वे में भी बता सकता हूँ कि हम लोगों ने एक सॉन्ग रेडी किया था, शायद मैंने आपको ये शेयर भी किया था। एक शाहरुख खान का सॉन्ग है कोयला मूवी का, बोल भोले बोल तुझको क्या चाहिए। तो क्या होता है ना कि एक मेंटर उन्होंने बोलते कि विजुअलाइजेशन के लिए ये आप करो। तो उसमें एक ऐड किया था, वही लाइन को आगे खींचा था कि 1 लाख वाला क्लाइंट चाहिए। तो जब शाहरुख खान बोलता है कुछ चीज ना, तो उसके जगह पे हम लोगों ने ये डाल दिया था, 1 लाख वाला क्लाइंट चाहिए। तो ये कब से वो था, पर ज्यादा फोकस उस पर हुआ नहीं। पर शायद मुझे लगता है और ज्यादा फोकस होता तो शायद जल्दी और अचीव कर लेते। वो एक चीज ये भी होता है कि हम क्या वैल्यू एडिशन करते हैं ना, क्योंकि लोगों को वो दिखता है, लोग देखते हैं, भले हमें पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ क्लाइंट्स मिले जो अपने फीडबैक्स देख के आए हैं, लिंक्डइन पे उन्होंने देखा तब जाके आए, या अलग अलग चीजें लोग हमेशा देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन अपना कैसा है, या कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, और उस तरीके से फिर ये सब चीजें इम्पैक्ट भी करती है। और जो प्रोसेस के साथ गुजरे बहुत अच्छा रहा। और फाइनली हम लोग क्लाइंट को, ड्रीम क्लाइंट को बोल सकते हैं हम अचीव कर गए। और अभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ अभी तो आराम से मिल सकते हैं, और भी कुछ नया सोचा है। Very good, Akash. So what I loved talking with you was कि what I was seeing, जो आकाश पहले मैंने देखा था, like when we started with our journey, there was a lot of clarity which was not there. But अब when I am seeing you talking right now in front of, like, speaking about how you are doing your business, I think you have much more clarity now कि अब क्या Yeah. है, क्या सेगमेंटेशन होता है, क्या पैकेजेस होते हैं, किस तरीके से सेल करना है. So there is a lot of clarity that came in through this process, I believe. यस एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा क्लैरिटी आया। पहले तो हम लोग सिर्फ सेल, मतलब जो मिलता था, रेफरेंसेस मिलते थे, उसको कर लेते थे, कन्वर्ट करते थे, उनके लिए काम करते थे। पर जब एक गोल सेट होता है ना, फिर उसके बाद अगर कोई मेंटर होता है तो समझाते हैं। मैं हमेशा मेंटर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों, पर जो मेंटर बोलेंगे मेरे लिए वो ईस्ट होता है। जो मराठी में एक कहावत है, जो जो बोले थी पूर्व दिशा, तो मेंटर बोलेगा तो वही है।
तो इम्पोर्टेंट वो भी है कि हम क्या क्योंकि उनको पता है कि क्या करना है। तो अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली, कभी कभी नहीं होता है, डिले होता है, पर हाँ, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके साथ रहना है, वो स्टिक करके चलो, कोशिश तो करना है। और हमेशा उस तरीके से अगर हम करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। और जो आपने शेयर किया था, बहुत सारा सपोर्ट रहा वो प्रोसेसेस डिजाइन करने में। Yeah, that's something true that you said. Ki a business is not just about passion या love to do something, but it's also about the systems and the structure of creating a business. कैसे आप सारे functions को set करते हो, कैसे सब structures Yes. साथ में मिल करके एक foundation बना रहे so that your business can grow. So that's very nice. And now I want to know from you, like कि अब when you have achieved a particular milestone or one step ahead in your business, अब आपको कितनी clarity है towards your premium clienteles? Like where do you see your business in the next coming up year, and what is the change that you can see after achieving your one goal? यस, डेफिनेटली। तो ये जब गोल अचीव हुआ ना, तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा था मुझे। और बीच में मतलब एक एक अलग सेटिस्फेक्शन था कि चलो हाँ, एक एक अपना जो गोल था बिजनेस में, हम इतना बड़ा गोल ले सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो जो लास्ट कुछ दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। बिजनेस में ये मानता हूँ पर्सनली, शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, पर हम अगर बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं ना, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा उसको अपग्रेड करना चाहिए। कुछ नए चेंजेस लेके आने चाहिए। मतलब भले वो चेंजेस से ना थोड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम बुक पब्लिश कर रहे हैं और पहले से ही वही सेम चीज है, अगर उतने ही सर्विसेज है, तो हम लोग शायद वही सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद क्या, नए क्लाइंट या वो जो क्लाइंट है एग्जिस्टिंग, उनको और क्या दे सकते हैं। जैसे मैंने ये आपसे सीखा था लास्ट टाइम कि जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो उनको क्या दोगे फिर। अगर उनको कुछ देने के लिए नहीं है, तो फिर वो तो लोग निकल जाएंगे ना, उनको कोई मतलब नहीं है, फिर वो अपने साथ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट अपग्रेड करते जाए। तो मेरा 1 साल का आगे का ये है थॉट कि हम अगर क्लैरिटी रखते हैं, तो फिर हम लोग थोड़े कुछ सर्विसेज और ऐड करेंगे। जो प्रीमियम क्लाइंट्स है उनको और क्या हम दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है बाकी दूसरे हैं, उनको हम प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्रीमियम में अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ चीजें ढूंढेंगे और उनको वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और कि जो अभी एग्जिस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट है ना, तो उनको हम कुछ और सर्विसेज देने वाले हैं। जैसे कुछ जैसे आपको भी पता है कि हम प्रोडक्शन अभी शुरुआत किया है, फिल्म प्रोडक्शन। तो हम कुछ ऐसी सर्विसेज लाने वाले, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि जहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट चीजें उनको दे, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, या वो सर्विसेज लेके वो कुछ अलग करने की कोशिश करे। तो 1 साल में ऑफकोर्स हम और भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ, कुछ डिफरेंट सर्विसेज के साथ आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें लाइनअप है। और कुछ दिनों में हम लोग एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे ऑडियो बुक्स वगैरह हम प्रोवाइड करने वाले। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जैसे आपने बताया था कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए भी क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने साथ होंगे, क्लाइंट्स अपने साथ होंगे, तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि रात में, जस्ट कल रात में ही मुझे एक एग्जिस्टिंग ऑथर का मैसेज आया था कि वो बोले, उन्होंने एक नंबर शेयर किया। वो बोले कि इनको, ये भी मुंबई से है सर, इनको भी बुक पब्लिश करना है और आप दोनों मिलके कुछ अच्छा करो। तो वो जो था ना, उन्होंने रेफरेंस दिया, वो सही था। रेफरेंस तक ठीक है, सब लोग देते हैं अपने बिजनेस में, कस्टमर देते हैं। पर वो जो चीज थी ना, कि आप दोनों मिलके कुछ अच्छा करो, बड़ा सोचो, तो वो बात बहुत अच्छी थी कि हाँ, लोग अपने बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। ये तभी हो सकता है कि अगर हम अच्छे हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, या ये कुछ ऐसे प्लान है कि हाँ, बहुत अच्छा एक अलग नाम बनाएंगे, एक अलग यूनिक ब्रांड बनाएंगे बाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन को, और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे।
that's amazing, Akash. All the best. आप जो भी आगे जो initiatives लेने वाले हो उस चीज के लिए, because I'm sure that it will turn out to be very beautiful in the coming years. Not only beautiful but successful, both in terms of having a value-based brand as well Yes. as having something which gives you back the money and rewards you as an entrepreneur also. तो Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन है अभी before we end up this short conversation, that what difference did you find before coming to coaching and after being a part of the coaching system for your business? होता क्या है कि हम जब तक मैं कोचिंग में नहीं था, मेरे डिफरेंट मेंटर्स थे, पर बिजनेस के रिलेटेड मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। पब्लिकेशन जो पहले स्टार्ट किया था, जस्ट मेरे पास पब्लिकेशन कैसे प्रोसेस के लिए था, मतलब क्या करना होता है उसके लिए है, पर बिजनेस को एक्चुअली कैसे रन करना है ना, उसके लिए ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। हम लोग जो क्लाइंट आते थे उनको वही सर्विसेज जो है इतना इतना ये हम कर सकते हैं वो देते थे। पर इम्पोर्टेंट जब हम ला रहे थे, जब अपना कोचिंग शुरू हुआ, मेंटरिंग शुरू हुआ, तो एक समझ में आया कि नहीं, ये तो बेसिक सर्विसेज ये तो कोई भी पब्लिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों करें, मतलब हमारे पास लोग क्यों आए। अच्छा ठीक है, रेफरेंस से आते हैं, पर उन्होंने हमारे साथ ही क्यों रहना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं। नहीं, ये कोचिंग में आने के बाद समझ में आया, समझ में आया कि हाँ, अपने सर्विसेज को कैसे हम एक समझ में ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे टाइम बहुत बार क्या हुआ था कि पहले भी मैं बताता हूँ कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे किसी को, और उसमें बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता था। कभी कभी समझ में नहीं आता था कि हाँ एग्जैक्टली इतना हो रहा है या इतना हमें सर्विसेज पे डालना है। तो ये तब समझ में आया जब हम लोगों ने डिफरेंट पैकेजेस बनाए, डिफरेंशिएट किया सर्विसेज को, और वो एक बहुत अच्छा एक्टिविटी था। उसके बाद काफी सारे चेंजेस भी आए। फिर इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ज्यादा हम लोग क्या होते हैं ना, जब क्लैरिटी नहीं होता है ना, तो बहुत ज्यादा सोचते भी है और कुछ नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा सोचते हैं और कुछ नहीं मिलता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर किसी मेंटर के साथ बैठते हैं ना, तो अगर उनके साथ बैठने के लिए जाना है तो पहले प्रिपेयर करके भी जाना होता है, और फिर उनके वहां से आने के बाद बहुत सारा काम होता है तो वो भी करना होता है। तो समझ में आता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़े। तो इम्पोर्टेंट यही है कि बहुत सारी चीजें इजी हो जाए, हम बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। और जैसे आप भी हमेशा बोलते हैं, और मैं हमेशा मैं भी मानता हूँ कि प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं तो फिर बहुत मुश्किलें होती है। जो चीजें जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें भले ही हम जब कस्टमर क्लाइंट है अपने साथ जब जुड़ते हैं तो बहुत सारा अच्छा रिलेशन होता है, बहुत अच्छे होते हैं, पर एंड में कहीं जाके कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है या चांसेस होते हैं, तो वहां पे हम लोग सेफ रह सकते हैं कि कैसे सेफ रहना है, या हम मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स ना आए इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर रहे। वो सब चीजें जब आपसे कनेक्ट हुआ तब जाके मुझे समझ में आया, तब लोग उस पे काम किया, और ऑफ कोर्स बहुत सारा बेनिफिट हुआ। और ये जो प्रीमियम क्लाइंट मिला है, तो उसका सभी क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे मैंने सबसे पहले आपको ही मैसेज किया था। शायद आप बीमार थे तो इसलिए मैं 2 दिन कॉल नहीं किया, बाद में किया, पर सबसे पहले आपको ही बताया था। तो ये सब चीजें जो है एक मेंटर के साथ रह के हो सकती है, और बहुत इजीली हो सकती है, और हो भी रही है। तो आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, और आगे भी बहुत सारी चीजें होगी। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग, फॉर हेल्पिंग me and Babar International Publication. Thank you, Akash. Thank you so much. And the point is, see, what I would like to bring forward here is ki it's not necessary that everything works for everyone, and it all depends on how you take the actions. So, because I have always told Yes. you that you have been an action taker, and if something is told to you, ho sakta hai there might be a slight delay or something because of like the natural environment या natural situations की वजह से जैसा हम plan करते हैं वैसा 100% नहीं होता. That happens in every business. But उसको at least एक प्लान में लेकर के आना, उस पे एक्शन लेना, उस पे कुछ चीजें करना या कुछ प्लान करके उसको स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ाना, दैट इज समथिंग दैट मेक्स people different from the people who just learn या
talk and go away. So for you, I would say you have not been a person who will just talk and go away. उस तरीके का attitude नहीं है, तो that is something that really works well. Thank you so much for sharing your success story with us today, because I'm sure it will inspire a lot of more people to take certain actions and take action steps rather than just seeing something or learning something just by looking at something. I would say learn by doing, क्योंकि करने से ज्यादा कुछ भी ज्यादा important नहीं है. The more you start doing, the more you experiment, you start achieving the results. So thank you for being today on the call and sharing your story, and we look forward to more of success stories coming from you